की Itu karena mau tong mana kau online nali apa? Klik nomor lain. जतन हमारे सभी के नमस्कार। आज 23 अगस्त, हर साल की तरह किलोमीटर के दौर आज हम दिल्ली में है। आज हम इसलिए यहाँ है कि हमारा जो तिब्रसा जाति है, आजादी के 76 साल के बाद भी हम लोग अभी पीछे पड़ा है। तो इसीलिए हमारा दर्द जो है, हमारा जो तकलीफ है, वो हम आज भारत सरकार को बताने के लिए हम आज यहाँ है। आज हमारे बीच हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट और आज के इस प्रोग्राम का भी प्रेसिडेंट है श्री प्रेम कुमार रियांग सार जी। आंगोनो बिनी आजुक थाया आसुकनानि बागै कय जाओ। तेबो मानक जाक जिनारो पार्टी आईपीएफ तिनी वाइस प्रेसिडेंट बरमन आंसार के जमातिया बनो बिनी आजुक थाया आसुकनानि बागै कय जाओ। आज हमारे बीच हम खुद नसीब है डॉक्टर विष्णु प्रसाद बालाजी है। हर साल की तरह वो आज भी हमारा साथ हमारा जो ईमान है उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। मैं सर को अनुरोध करूंगा। Thank you, sir, for giving your valuable time for us. और हमारे बीच डॉक्टर प्रणव बंशी जी सर भी है, चीफ एडवाइजर और आसाम कुछ राजवंशी स्टूडेंट यूनियन का लीडर है। सर को भी वेलकम। आमनी लगी तंगचिनी वाइस प्रेसिडेंट चिनी सर प्रदीप देववर्मा बनम आसुनमय कयजाओ चिनी ताइखरसा वाइस प्रेसिडेंट चिनी सर राजेंद्र रियांग सर बनम लाइस आसुनमय कयो मानक चिनी पार्टी जनरल सेक्रेटरी चिनी सर सपन देववर्मा बनम दाइस आसुनमय कयो फाइदी सिंह ताबुक चिनी बरमनां नारय रत्न चिनी सिरि सिटिनि रिसा याफरे लामसंनाय आं कयनाय चिनी इयन आईपीएफ तिनि प्रेसिडेंट चिनी सर विकास देववर्मा बनम दाइस आसुननानि बागै जिनी आतिशानी देवबंधु जमातिया प्रेसिडेंट बनम दाइस आसुनमय कयो प्रेसिडेंट आईएमडब्ल्यू नि जिनी सर तरुण देववर्मा बनम दाइस आसुनमय कयो वाइस प्रेसिडेंट आईडब्ल्यूएफ नि जिनी बरमनाजन सुमित्रा देववर्मा बनम दाइस आसुनमय कयो फाइदी सिंह ताबुक जिनी
borang mana narwai rokno risariwoi lamsok lainai ang koinai bukok sengna puilan sini ini nasuk pang ta sini parti ni presiden sini sar Prem Kumar yang no risariwoi borang dewi lamsok na ni bagai boni logi koinai sini guest Vishnu Prasad Barai Sarjino lamsok na ni bagai hai kongnai sini guest Khorsa ka jotono no lamsok na bagang koyo Sini party ni vice president sini Delhi Movement Committee ni chairman sini sar Pradeep Nobo Risari lamsok nan bai koyo tai beri botol ni vice president sini Buhu Kokrat Sumitra Deborma IMW ni sini Sar Torun Deborma Abisani Devendu Jomatia Sini Yod IPF ni Presiden Sini Sar Bikas Deborma Jontabuk Sini ni Pandane welcome speech karanai Sini preparatory committee ni Chairman, Thai Party IPF ini Vice President, Sini Sar Pradeep Deborma ni Koktel. Kole. Gap. Am lorish le ko slow. Lihat terus lagi. Aja. Jatona khulumbai kha Jatona hambai This is the rainy day we know in spite of that we are sitting here at Jantar Mantar. However, the respected chairman come president of our IPP party of Tripura, the respected vice presidents, GS, AGS, and central workers of IPP, the respected VIPs and dignitaries who have seated here on dais, and honorable guest, the respected our supporters, warriors, party, silent members who have come here attending the Jantar Mantar agitation and rally. In addition, I would like to respect and thanks to the respected print media from local and from Tripura and the intellectuals of the locality of this Delhi. Ang kisa kokoy bay na kisa mas hagra sinay jate aw jagan boro bujina teuy. Kay borong ba bujina dorkar tongo. Yes, what I was telling here. First of all, I am standing here in front of you with my broken heart. But this heart, unwavering spirit, that have been nurtured by my generation for
our struggle and resilience and the unyielding desire for our struggle, survival and economy and autonomy. Before going to the main issue, I would like to draw kind attention of the media friends of local and Tripura to the historical overview of our Tripura. Sir, before merger, our Tripura was an ancient, independent kingdom. It was ruled by 184 kings. The last king of our Tripura, Maharaja Birvikram Manikka, expressed his desires to join the Union of India before his death in 1947, hoping that the Tripuri people, the indigenous people, will be well protected, well secured by the government of India in coming days. Accordingly, the Maharani Kanchan Prabha Devi has signed the instrument of accession in 1949 to decede to the Union Government of India. And subsequently, the Indian government took upon itself responsibilities and duties to safeguard the indigenous people of our Tripura, for protection our land, our language, our culture, our tradition, our existence, our survival. It was happened in the history. During his life, the last king, Maharaja Birvikram Manikka Bahadur, in his official order, declared that 7,970 square miles of land has reserved for Tripuri people for future safeguard, which is subsequently reserved by the then government in 1975 during the tenure of the then Chief Minister, Mr. Sukhmay Sen Gupta. It is the reserve. Our Maharani Kanchan Prabha Devi have joined our Tripura in 1949. During this 1949 to 50, our indigenous people population was 62% out of the total population of Tripura in 1950. At the same time, in contemporary, 4,51,000 above refugees came in Tripura and took shelter in Tripura, which has never been pushed back in Bangladesh. It is settled in Tripura. Till that, during the period of 10 years, as per census report of Government of India, in 1951, our Tripura population was 4,46,707, and it is rapidly increased to 11,42,502 in 1960. Within these 10 years, what has happened here? We have seen that the decadal growth rate of our Tripura census report was high, 78.7%, whereas the rest states of India had only 21%. This is the decadal growth rate. What happened here? You know, media friends, just think about it.
Just imagine, out of imagination. How can possibly you just think it? In brief, I will tell another thing also. Now come to the point of Bangladesh war. 1971, at that time also, more than 11 lakhs refugees comes in Tripura, and the government has given them in camps, subsequently settled. They are also not yet pushed back to till that. Despite of the treaty executed in between the then Prime Minister Srimati Indira Gandhi and the then Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. So, by this way, what happened? The illegal migrants, coming in Tripura is continuing. It is unabated, not yet controlled. Who has come from Bangladesh are the key and kings of the local administration. The local administration of Tripura is so much sympathetic to the refugees people. That's why the refugees people who have settled here in Tripura, getting their necessary documents, easily they are getting. Like your school certificate, ration card, Aadhaar, Bhotayar card, PRTC, Panchayat, what not, everything they are getting easily. Just for the namesake, government taking it very lightly. It is happening till that. In our Tripura, not only that, the Tripura government is still standing behind the refugees. Even in present, in nowadays, the Rohingya refugees from Myanmar continuing to come in Tripura through Bangladesh. Thousands and thousands refugees, illegal migrants are coming and continuing entrance in Tripura. This is the fact. Other than this, so many issues are there. Some issues I will mention here. In your Tripura, so many forces are there, like your Tripura State Rifle. This Tripura State Rifle having 14 battalions. Out of that, 12 battalions headquarters, their range office, their company office are located in PTADC. Land 2,000 required per battalion. Then you just multiply it. 12 battalions of TSR, Tripura State Rifle, into 2,000 hectares. How much? 24 hectares of land is being evicted by the government of state in the name of settlement of Tripura State Rifles. Likewise, so many forces are there. BSF, Border Security Force, CRPF, Assam Rifles, SSB, so many. Here also, I have counted, not less than 50,000 hectares of land is being occupied, and the Tripura peoples are evicted from their forefathers' land.
Why? Now the families, indigenous families, where they have gone to the hill track, to the hill terrain for some cultivation only. Just imagine, during the refugees from Bangladesh, they had no food, no clothes, no properties when they have come in Tripura. Now they have everything. They are found now landlords, zamindars, crorepati. On the other hand, what we are observing, our Tripura people, once son of soil, became as BPL, below poverty line. 90% of indigenous people, son of soil, became as BPL. Condition, hopeless condition. And in 1985, media friends, in 1985, TTAADC, that is Tripura Tribal Autonomous District Council, was introduced for giving safeguard of the indigenous people, taking the 70% land of Tripura. In 1985 it is established and action started in 1984. Now this TTADC is depending upon the fund and budget of the Tripura state. Tripura state gives them to the TTADC only 10% of the budget. So by taking this 10% budget, the TTADC authority is failed to fulfill the aspiration of the indigenous people. Very less amount is being sanctioned by the state government of Tripura. After expenditure of salaries of the staff and office expenses, 20 crore, 25 crore, sometimes 30 crore only remains as for development work. It is nothing. It is just like a drop of water to the desert, to the oasis. Media friends, just think it. And thereby our TTADC, for what it is created, is fully frustrated. No future. That is why we are coming here again and again since 2009. Just taking one core demand. Demand is what? Separate state. We want Tripura land within the area of our TTADC. It is scheduled area as per our Article 2(3) of the 6th Schedule in Indian Constitution. It is manageable. It is solution of the Constitution. It can be given by the government of India. It is not absurd. It is in reality. If the government, central government, desires to give us this Tripura land, they can give us. They can relieve us from the exploitation, from the frustration, from the deprivedness, suppressed, oppressed, deprived. We are evicted, we are suppressed, we are deprived. By whom? By the illegal migrants, by the refugees. There are lakhs and lakhs in Tripura. They have settled permanently. So, on behalf of IPFT, as a vice president of this IPFT, I would like to appeal before the Court of India, before the Honorable Prime Minister and the Home Minister, please give us Tripura land as per condition of the Constitution of India. It is possible so that we can relieve from the all exploitation, all suppression, all made by the other caste, other communities. This is my appeal today. So I will not speak more. Today
our dignitaries and VIPs, our officials will take deliver their speech. I will stop here. Again, I would like to thank to the supporters, warriors of our pages and dignitaries and the localities, as well as the media friends present here, attending here. Takuro bukuro, borong buji na bay kisa ko kokoy masaka je buji mane nor khata tibaye ko kokoy mo koy chao noi. Sung amtiken songram khale nai. Sung je thuya sa, sung thui thama pore chin busara khai nai. Chin takhubu ko khai nai. Karon chin barni somida poriskar thike tongo. Sung of Tripura স্বাধীন ত্রিপুরা যে ত্রিপুরা ল্যান্ড সম্মানে অবসম্ভব অসম্ভব কি ছুঁয়া শুধু থকরই দङ গুরুই দङ ফেমলি দङ যা যা সত্যি जों be unite, be together, and we'll get it sure, 100% sure. We'll fight against the illegal unto our death. Takuru bukrasa sawingan ni kongaro mutaka. Thank you. Sini Delhi Movement Committee ni Honorable Chairman Tai Chin Party ni Bo Vice President Borong Gunang Prodit Kumar Deborma Sini Buskangon ang Pukmani Kok Haik Langka Awan Bagai Bono sini Toban Ichibai Hari Cheng Bisileria Dia tu sini Yagos Dora Belai Keseba Tabuk Ang Sini Buskango Short speech ri Knariani Bagai Koinai Chini Party ni General Secretary Borong Gunang Sopon Kumar Debor Sopon Debor Mano Hambai Honorable former Cabinet Minister of Tripura and President of Indigenous People Front of Tripura, IPFT, and the Chairman of this program, that is observance of 15th Tripuran State Food Demand Day, for demanding creation of full-fledged separate state Tripuran through this sitting, peaceful sitting demonstrations at Jantar Mantar, New Delhi. Honorable Vice President, IPFT, Sri Krishna Kanta Jamatia ji, other Vice President, Sir Pradeep Devarma ji and Rajendra Riyan ji, and all our members of executive committees, Hansel Tai Champa, Tripurani, Tai Dilliwa Tamnai, Jara or Paimanda Financial Tiprasa, Bebak Joto Tiprasa, Takok Tai Pupuk Sono, Dilli ni Jantar Mantar Hoite, Norogno, IPFT and its allied organization ni pokko theke chini paiphlaya hambaiya paro song sahar mano chini Tripura wo tui torui tabu orai poroi nangjak chini bokha posto tung tongui mainya bone bagi chini khasuksa je chini minister cabinet minister Sri Shukla Charan Nuarjia ji bono song tini po finani tongmani phano song Tripura wo kaui ma pheka Bini sawo to khub watui tuitorui sitra obostha tongmani bagai boni bagai kha dukhon nang tu tui phano
जों जे टिप्रालेण्ड नांगौ आबोनि बागै सिनि सिगांनि सिमि सिनि जे प्रग्राम टक आउट खालायजाक 23 अगस्त 2024 जन्तर मंतर बनि बागै जों मा फालायका अरो जे फाइ सकपायनाय सिनि जत ताकुक बुखक नरंनो पाइपलाया हामबाय एंड यहाँ से जो दिल्ली से प्रेस मीडिया फ्रेंड्स पुलिस दिल्ली पुलिस सेंट्रल आईबी ऑफिशियल्स और दिल्ली से जो लोग यहाँ है हम लोग का साथ है सभी को आईपीएफटी एंड इट्स एलायंस ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से मेरा नमन ताकुक बुकुक्सन डियर फ्रेंड्स with the indigenous people of Tripura IPFT and its allied organization we are observing 15th Tipraland Statehood Demand Day 2024 through launching peaceful democratic sitting demonstration at Jantar Mantar, New Delhi today. Like previous years and appeal to extend support for fulfillment our long-standing Tipraland statehood demand for greater interest of the state and Tripuri or Tripura people. Friends, as you are certainly aware that the IPFT being a political party, हम लोग डिमांड करके आया है 2009 से आज लगातार हर साल एवरी ईयर मेमोरेंडम सबमिट करके आज 23 अगस्त 2004 अवधि हम लोग टिप्रालैंड मांग करके डिमांड करके हमारा मेमोरेंडम रीसबमिट आज भी हम लोग करेंगे एंड you also know that the demanding for creation of newly full-fledged separate state Tipraland, it is in elevation with the TTIDC scheduled area. The area is 7,132.56 square kilometer in provision of Article 2 and 3 under the Constitution India and submitted memorandum to the then Prime Minister of India from 29 October 2009 and resubmitting memorandum through launching peaceful democratic movement at Jantar Mantar, New Delhi and also launching in the state like as hunger strike sitting demonstration since 209 in every year. Dear friends, the indigenous people of Tripura are facing chronic multifarious problems during last 75 years, right from the date of merger of princely rule independent Tripura with Indian Union on and from 15 October 1949. The main problems, हम लोगों का जो main problems, the major problems है, this is population explosion in Tripura state due to enormous infiltration of foreign nationals. This is the one of the major problems in Tripura. Friends, the Aborigine people, shown of the soil, who is the ruler of Tripura, has been reduced to slendering minority due to massive influx, illegal infiltration from Bangladesh and settled in the state from Bangladesh since merger agreement 15 October 1949 from colossal alienation of tribal land. As a result, displacement of the indigenous Tripura people from their ancestral homestead and cultivable land since merger agreement, friends, my dear friends. Socially and educationally backward, indigenous people of Tripura in every sphere of life facing crisis of identity in their own homeland. My dear friends, exploitation
oppression, suppression, atrocities, deprivation from their basic minimum requirement as a citizen of India for the last 75 years. Minimum civic amenities, quality education, drinking water facilities, road connectivity, sanitation and health care, electricity, etc. is still distant dream in the TTADC scheduled hill area till date. Inequality in every development sector between TTADC scheduled area and non-scheduled area are drawn a distinctive boundaries under the state. Negligence and procrastination of Kokrok language. This is the language of indigenous people and its script issue that should be in Roman as per recommendation of all language commission or committee regarding use of script for Kokrok language, and of course the demand for inclusion in 8th schedule of the Constitution of India is going on last 75 years. बहन और भाइयों, 2018 में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी एंड आईपीएफटी दो दल मिलकर जो पॉलिटिकल अलायंस हुआ है, तब जो मेमोरेंडम ऑफ अंडर उसमें हम लोग दो पार्टी मिलकर सिग्नेचर किया है। हम लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड को सॉल्व करने के लिए एक कमिटी होगा जिसका नाम होगा मॉडलिटी कमिटी, और एज पर हम लोगों का जो एग्रीमेंट है, साइन है, मौ है। बाद में 2018 में हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी भी किया। उनका जो रिपोर्ट अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ त्रिपुरा में गवर्नमेंट चला रहा होते थे और कमिटी भी हुआ है, हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी, लेकिन अभी 6 ईयर हो गए हैं दोस्तों। इट इज क्रॉसिंग 6 ईयर। रिकमेंडेशन ऑल्सो हैव बीन सबमिटेड, किंतु एखोनो अभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 125 अमेंडमेंट बिल 2019 जब बीजेपी आईपीएफटी सरकार में आया 2019 पे हम लोगों का तब देन जो होम मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था, और बीजेपी और आईपीएफटी जो सरकार 18 नवंबर 2019 में असेंबली में, त्रिपुरा असेंबली में पास करके अभी द कॉन्स्टिट्यूशन 125 अमेंडमेंट बिल, जो बिल अभी पार्लियामेंट में है। दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव taken initiative for 125 amendment of 6th schedule to the Constitution of India for more autonomy and financial grants to it. The Constitution 125 Amendment Bill 2019 was introduced in Rajya Sabha by the Minister of Home Affairs, Mr. Rajnath Singh, on February 6, 2019. The aforesaid bill certainly to address the cherished danger of the indigenous people of the northeastern region, including Tripura state, wherein the scheduled area and special administrative system is in existence. And accordingly, the Tripura Assembly has been passed an unanimous resolution for the 125 constitutional amendment to empower the TTADC under 6th schedule of the Constitution of India on 18 November 2019. এবং এই 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার বিজেপি এবং আইপিএফটি জোট যে সরকার একটি রিকমেন্ডেশন প্রস্তাব পাঠিয়েছে 125তম সংবিধান সংশোধন বিলের মাধ্যমে, যে বর্তমান যে তৃতীয় এডিসি, এই এডিসিতে
30 रोए से ये सारे नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, यह आप लोग भी जानते हैं। त्रिपुरा is a major route for illegal migration from Bangladesh into India, with hundreds detected every year. The situation in Bangladesh has a whole bearing on Tripura, as it has a sizable population that have integrated into the state's demography following division of India Union in 1947, Bangladesh Liberation War in 1971, and later Sakma infiltration from Chittagong Hill Tract in 1980. Besides continuous immigration over the years, even during the recent communal tension in Bangladesh, it had sheltered nearly 16 lakh refugees from the Bangladesh, rendering the indigenous people population in the state slendering minority due to this massive influx, illegal infiltration, and settled in the state from Bangladesh. Tripura had border with India. The recent political instability in Bangladesh is immediately affect bordering northeastern states like Tripura, Assam, Meghalaya, and porous borders, and illegal migration badly affect the indigenous people where land is aplenty but not the population. Tripura indigenous peoples of the state is more threatened to prevent of influx from across the border due to the current situation of Bangladesh. We, the indigenous people of Tripura IPFT and its organization, appeal to take measures to prevent infiltration of illegal immigrants from Bangladesh. The IPFT and its allied organization arising demand that the creation of a newly full-fledged separate state, Tripuraland, based on TTADC scheduled area of Tripura under Article 2 and 3 of the Constitution of India is the only way for permanent solution of the above and listed problem to survival Tripuri peoples with our own identity, safety and security or safeguard in our homeland as rest of citizens of the national mainstream. Hence, the appeal to extend support for fulfillment our long-standing Tripuraland statehood demand for greater interest of the state and Tripura indigenous people. IPFT long live, IWFT long live, Yod IPFT long live, Atisha long live, IMW long live, Vande Mataram, Bharat Mata ki jai, Hambai, Jatanana Kulumka. Hambai, sini party ni General Secretary no bini nangkukmani kok sini buskanganarkmani bagai. Now, may I invite Dr. Pranab Rajbangshi, the Chief Advisor of all Assam Rajbangshi Students Union, to give a short speech in front of us. Sir, please. Now, the time is given to you. आज जंतर मंतर में आप सभी को मेरी नमस्कार एंड रिवोल्यूशनरी थैंक्स। तो आज यहाँ हम त्रिपुरा लैंड मांगने के लिए यहाँ सब जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए मैं त्रिपुरा लैंड जिंदाबाद बोलूंगा, आप भी आज त्रिपुरा लैंड जिंदाबाद बोलना चाहिए। तो इसलिए आप सब मेरे साथ जिंदाबाद बोलिए। त्रिपुरा लैंड जिंदाबाद, त्रिपुरा लैंड जिंदाबाद, त्रिपुरा लैंड जिंदाबाद। जोर से बोलिए, क्योंकि
दिल्ली को हम लोग का मांग सुनना पड़ेगा। त्रिपुरा लैंड जिंदाबाद, त्रिपुरा लैंड जिंदाबाद, त्रिपुरा लैंड जिंदाबाद, त्रिपुरा लैंड जिंदाबाद। डू और डाई फॉर त्रिपुरा लैंड, डू और डाई फॉर त्रिपुरा लैंड, डू और डाई फॉर त्रिपुरा लैंड। आज यहाँ पे IPTF का IPFT इंडिजिनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इसका प्रेसिडेंट रेस्पेक्टेड प्रेम कुमार रियांग जी, आज ये यहाँ डेमोस्ट्रेशन में आए हैं। यहाँ डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल जी, इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, और मंच पे ये IPFT का सभी लीडर, ऑफिस बियरर, रेस्पेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ऑल respected office bearer, एंड यहाँ में आए हुए सभी हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा का भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर प्रणव ज्योति दास राजवंशी, मैं बिलोंग्स टू कोस्ट राजवंशी। आप लोग सुने हुए आसाम में कामतापुर मूवमेंट का बहुत लॉन्ग टाइम मूवमेंट हुआ, आप लोग का जैसा हम लोग का भी है। आप लोग मेरे भाई है, क्योंकि हम लोग का कोस राजा ने आप लोग का त्रिपुरा राजा का साथ शादी का रिलेशन था, वो रॉयल रिलेशन था, इसलिए आप लोग मेरे भाई है। तो इसलिए मैं आप लोग को आज ये बोलना चाहता हूं, नेक्स्ट टाइम हम लोग का जो सेपरेट स्टेट का मांग है, हम लोग का एक ही मांग है, हम लोग का डिप्राइव, जो हम लोग लॉन्ग टाइम डिप्राइव हो रहा है, इसीलिए हम लोग एक साथ दिल्ली में जंतर मंतर में एक साथ मांग के लिए हम लोग लड़ेंगे। दिल्ली को एक साथ हम लोग यहाँ आके दिल्ली को, हम लोग का डिमांड को एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में तो हम लोग का जितना सेपरेट स्टेट का डिमांड है, जो इंडिजिनियस पीपुल का जो डिमांड है, एक साथ हम लोग लड़ने से हम लोग को ताकत मिलेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे सब एक साथ मिलने से हम लोग को ताकत मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट टाइम एक साथ आके यहाँ में एक साथ मांग करेंगे, क्योंकि त्रिपुरा लैंड के लिए जब 1947 का बाद 1949 में 15 अक्टूबर में त्रिपुरा लैंड का जो इंडियन डोमिनेंट का साथ राजा ने जो सुक्ति किया था, तो ये राजा ने जो सुक्ति किया था, आज त्रिपुरा में क्या हुआ है आप लोग तो जानते हैं, क्या हुआ है, पूरा नॉर्थ ईस्ट जानता है। त्रिपुरा में क्या है, आसाम में क्या है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में क्या लड़ाई हुआ था। तब कामतापुर राजा रघुदेव नारायण, विश्व महावीर शिलालेख का बेटा महाराज रघुदेव नारायण एंड त्रिपुरा का महाराज अमर माणिक का साथ एक साथ तब मुगल का अगेंस्ट में लड़ाई किया था। तो वो बात जब राजा ने इतिहास पे लिखा हुआ है, आज भी हम लोग ये इतिहास बनाना पड़ेगा। ये बात जो नॉर्थ ईस्ट का जो डिप्राइव है, हम लोग का जो मांग है, तो एक साथ हम लोग दिल्ली में मांग करना पड़ेगा। मैं ये मोदी साहब को बोलना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग का जो इंडिजिनियस का ये प्रॉब्लम है,
बार बार आप झूठ बोलता है जो इंडिजिनियस का ये आप मांग वो बात करता है, वो जो हिंदू का बात करता है, लेकिन हम लोग का जो इंडिया का इंडिजिनियस जो राजा महाराजा का जो ये इतिहास में जो आपका दान दिया था उसको क्या हुआ? आज मोदी जी इतना झूठ बोल के राज कर रहा है, तो मोदी जी को पूछना चाहता हूं, ये दिन ज्यादा नहीं चलेगा, ये नॉर्थ ईस्ट जब एक साथ हो जाएगा, ये इंडिया का और मोदी जी का ये राज नहीं चलेगा। तो इसीलिए बोलता हूं, आप लोग एक साथ होइए, हम आपका साथ है। तो इसीलिए एक बार जोर से जय त्रिपुरा, जय त्रिपुरा लैंड, जय त्रिपुरा लैंड, जय त्रिपुरा लैंड। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, sir, for your valuable speech in front of us that you have placed. Again, now I will invite our guest, Vishnu Prasad Barar ji, to come and share your views. And Vice President, General Secretary, members, as well as all demonstration friends, sisters and brothers. अभी हम हिंदी बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा, आप लोग भी जानना पड़ेगा, तो हिंदी में बोलता है, आप लोग सुनिए। ये एक बीमार है, ये त्रिपुरा लैंड एक बीमार है, क्योंकि आज इतना साल हो गया त्रिपुरा लैंड मारते मारते 1984 में जब ऑटोनोमस बॉडी मिला, तो आज 41 ईयर्स हो गया, 41 साल हो गया, तब भी गवर्नमेंट नहीं सुनता है। और उसके ये क्या है कि ऑटोमेटिक प्रोविजन है आर्टिकल 239A, उसमें क्या बोलता है, स्टेट लेजिस्लेटर एंड पार्लियामेंट अगर पास करता है तो उसको ऑटोमेटिक सिस्टम, क्योंकि उसका प्रोविजंस है जो आर्टिकल 239A में एक प्रोविजन है, अगर इनका कितना कवर करता है, कॉन्स्टम कंडीशंस है, वो कंडीशन ऑलरेडी त्रिपुरा लैंड में फुलफिल करता है। क्योंकि ये सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्सपर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इनको बैठाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में बैठे बाहर डिप्लोमेटिक डायलॉग करनी चाहिए, और उसके तहत ये आर्टिकल का हम लोगों को मुद्दा पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि 239A और 239 और 244A इसमें सारा, और 246, 249 ये आर्टिकल क्या बोलता है कि देखिए, और फाइनेंस पावर देना है। अभी हमारा ऑलमोस्ट 60% पावर हमारा पास है, अभी आपको 40% मोर पावर चाहिए, उसके लिए ये लोग ने आर्टिकल 246 को रिकमेंड करना है, और वो लोग ऑलरेडी रिकमेंड, अभी भाई ने कहा, जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि 125 एक्ट से, और ऑलरेडी 6 साल पहले एक अमेंडमेंट पास किया है और असेंबली एक्ट पास किया है। असेंबली एक्ट पास करता है तो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, सेंटर का रुकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसको स्टेट को फुल पावर होता है, और गवर्नर इज द फाइनल अथॉरिटी हु कैन प्रोवाइड द स्टेट, और उसके बाद में पार्लियामेंट अपने आप सोचेगा कि देना है। और अगर इतने भी नहीं करता है, देन वी कैन गो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कमेटी होता है सुप्रीम कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है ये सारा मैटर लेके। उसके लिए हमको टेक्निकल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और एज वेल एज इंटेलिजेंस एक्सपर्ट होना पड़ेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जानता हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इसका अकॉर्डिंग टू दी, और जो कोऑर्डिनेशन कर सकता है, जो कम्युनिकेशन कर सकता है। तो इस टाइप का आदमी एक लेके, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर में पीआई डालता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पास आउट किया है, तो उसके पास आउट करने में आर्टिकल 368 क्या बोलता है, यहाँ में अमेंडमेंट करता है, एक्ट को अमेंडमेंट करता है सेंटर में। तो हमारा कोई जरूरत नहीं, स्टेट अमेंडमेंट एक्ट करता है तो स्टेट ऑल्सो इज फुल्ली पावर लाइक ए सबसे लेजिस्लेटर, ये लेजिस्लेशन पास कर दिया, हम भी लेजिस्लेटर है हमारा स्टेट में भी, इसलिए हम लोग पास कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246। उसके बाद में हम आर्टिकल 239 को हम बेस करता है, और आर्टिकल देखिए फाइनेंस में हमारा 281, हमारा 281 आर्टिकल क्या बोलता है, आपको फाइनेंस कमेटी का पावर देना है। तो अमेंडमेंट करने में इनका कितना टाइम लगेगा? अगर चाहे ये माननीय
मोदी जी, अमित शाह जी दो ही है सरकार में, ये बाकी तो ये सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट है, मेंबर्स है। हम ये कहता हूँ और मेरे यूनिवर्सल ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है वो बता रहा हूँ कि अगर ये दो चाहे तो आपको एक दिन में भी ये मिल सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट एक्ट करना बड़ी इशू नहीं है इनके लिए। आज तक कितने पार्लियामेंट एक्ट पास किया है, तो इसलिए हम बताता है आप लोगों को कि ये जो मसला है इतना इजी से नहीं मिलेगा, क्योंकि जब 41 साल ये लोग आपको घुमाते रहा, और आज देखिए 75% ऑफ एरिया त्रिपुरा लैंड में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अंडर है। उन लोग का उठा के 40 बना दिया, 43 बना दिया, और एसटी ट्राइबल वही का वही है। इसका मतलब आप लोग देखिए मेजोरिटी माइनॉरिटी हो गया, माइनॉरिटी मेजोरिटी हो गया। दैट मीन्स जो आपको इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, जिस तरीके से माइनॉरिटी को ऊपर उठा दिया और मेजोरिटी को नीचे लेके आया, तो काल तो आप लोग तो रहेगा ही नहीं, त्रिपुरा लैंड रहेगा नहीं। और देयर इज इंटरनेशनल बॉर्डर कनेक्टेड विद म्यांमार एंड बांग्लादेश। वहां से डे बाय डे मोर देन 1000 पीपल आर इंटरिंग ट्रेसपासिंग टू द इंडिया थ्रू त्रिपुरा। और आप लोग आगे बोलेगा वो लोग एक, और उधर आगे कैसा ये लोग, इसके मैटर ऑफ एग्जामिनेशन, इसको एग्जामिनेशन करना है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इनका आधार कार्ड कब बना और इनका इलेक्शन आईडी कार्ड कब बना, इनका डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं है, और ये यहाँ पैदा हुआ ना बाद में आगे बना, दैट इज हैज टू बी आइडेंटिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसके साथ परस्यू करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी असेंबली एक्ट पास हो गया, तो यू हैव गॉट वेरी बिग इंस्ट्रूमेंट। लेकिन इसे लेके बैठने से नहीं चलेगा, सेंटर के ऊपर में भरोसा रहेगा कभी भी नहीं चलेगा। और अभी मैं रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, यूएनए में, अमेरिका में, मैं अभी ह्यूमन राइट्स में मेंबर हूँ, तो आई कैन टेक अप इट इशू इन द यूएनए ऑल्सो, क्योंकि यूएनए में भी हम स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा, और हमको सेंटर से स्टेट से हमको कोई कनेक्शन नहीं है, ताल्लुक ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा सेपरेट हो जाएगा। हमको फाइनेंस पावर 281 हमें अमेंडमेंट करके दे, और स्टेट ऑलरेडी दिया हुआ है। और इससे जो आप लोग का मेंबर जब हाई लेवल कमेटी बनाया, हाई लेवल का मतलब हो गया इमीडिएट काम करना, दैट इज सब फिक्सिंग टाइम होता है, वो 60 डेज 90 डेज, उससे ज्यादा नहीं होता हाई लेवल कमेटी, क्योंकि हाई लेवल कमेटी मीन्स आवर्स में होता है, घंटा में फिक्स होता है। लेकिन आप लोग का तो अभी इतना 6 साल हो गया सुनता नहीं, इसका मतलब काम में तेल डाल दिया, तो ये कहा घुसिया को अभी फाइल नहीं मिलेगा काल ढूंढने से। तो इसीलिए आप लोग को इसको परसू करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो आप लोग मैं एक सजेस्ट करता हूँ, एक कमेटी बनाइए अभी, टेक्निकल कमेटी। आई रिक्वेस्ट टू वाइस प्रेसिडेंट हु इज द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइज कमिटी, आई थिंक ही कैन कैपेबल फॉर दैट। सो in Delhi level, I will take up the issue in the Supreme Court. With the Supreme Court Chief Justice, we will discuss all the matter, and according to Constitution of India, we have to go ahead. Because Article 281 is the power and is the manager State Assembly they can extend. वो लोग एक्सटेंड कर सकता है। और उसके बाद में आप लोग स्टेट लेवल में एक कमेटी बनाइए, स्टेट लेवल को कोऑर्डिनेट करिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग के पास है एक फाइल बनाइए और लेके आइए। आई विल टेक अप इट यूनो, अगर जरूरत पड़ेगा आई विल टेक अप। अकॉर्डिंग देखिए मेघालय ऑलरेडी स्टेट है, वहाँ में नो इश्यू ऑफ स्टेट लैंड, नागालैंड में नो इश्यू ऑफ स्टेट लैंड, मणिपुर में नो इश्यू ऑफ स्टेट लैंड, खाली लड़ाई करा दिया, वो भी गवर्नमेंट का सम है हाथ है, उसको उन लोगों को सोचना चाहिए, आपस में लड़ा के कोई फायदा नहीं होगा। एक दिन ट्राइबल एक हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, तो फिर गवर्नमेंट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। दैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इन द हाई लेवल कमिटी मीटिंग व्हेन आई वाज द मेंबर इन दैट कमिटी। तो ये हम बता चुका था, देखिए एक दिन ऐसा आ जाएगा, आप लोग कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा फिर। तो ये भी एक मामला है। अभी दूसरा मामला है कि अभी जहाँ में हमारा ये नहीं है, टेरिटरी बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको ट्रेस पास को कैसा बंद किया जाएगा, और वो बाहर से उधर कब घुस गया, कौन चौकीदारी करेगा, विल टेक द रिस्पॉन्सिबल ऑन दैट। तो स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट गवर्नमेंट को आप लोग भरना पड़ेगा, और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी होता है, जो डीएम होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल है, डीएम को पकड़ना पड़ेगा, एसएसपी को पकड़ना पड़ेगा। ये आपका स्टेट लेवल कमेटी बनाइए, ये आईपीटीएफ की तरफ से, उसके बाद में वो लोग परसू करेगा, कितना आदमी आया कितना है, जांच शुरू करा दीजिए आप इमीडिएटली, अदरवाइज यू कैन नॉट डू नथिंग। और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप भाई बहन लोग सब ऐसे हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे, और आप रिफ्यूजी बन जाएंगे इधर 10 साल में। ये पॉलिसी अभी गवर्नमेंट का जो सिचुएशन है, जो पॉलिसी से जिस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से इसको देखने में मिल रहा है। तो उसके बाद में एक सेंट्रल लेवल में कमेटी बनाना पड़ेगा, विल coordinate with the government of India as well as Supreme Court of India in the Constitution, in regards of Constitution and in regards of amendment of this.
इसके लिए ये करना पड़ेगा। और यूएनओ लेवल में हम टेकअप करें, सेंट्रल लेवल में हम टेकअप कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग स्टेट लेवल में करके एक कमेटी बनाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इनको अल्टीमेट देते हैं। अकॉर्डिंगली विल गिव जस्ट फाइनल अल्टीमेट। अब ऐसा नहीं होगा फिर कल माइनॉरिटी हो जाएगा तो आप कहाँ बात करेंगे, तो कोई नहीं। और हमारे बहन लोग को ही लोग शादी करके लेके चला जाएगा, वो कहाँ पहुँचा देगा। आज देखिए नेपाल में एक डिस्ट्रिक्ट है सरलाई, वहाँ में रोहिंग्या 17% मुस्लिम हो गया। कहाँ से आया पता ही नहीं, एक भी नहीं था। तो उसी तरीके से ये लोग, क्योंकि वो भी बॉर्डर है, तो इसी तरीके से ये लोग यहाँ में भी घुसा है। त्रिपुरा का बहुत बड़ा एक समस्या है। मेघालय में का ट्राइबल जो है वो थोड़ा अवेयरनेस है, वो लोग इस तरह इमीडिएट एफ करता है नया आदमी कहाँ से आया। त्रिपुरा में आप लोगों के साथ क्या हो रहा है कि नया आदमी आ रहा है, आप लोगों को बोलने से आप लोगों को दबाया जा रहा है। क्योंकि मैं पर्सनली विजिट किया था तो मैं देखा वो लोग, आप लोग अपना भाषा करता है तो वो लोग बंगाली भी बोलता है, बंगाली बोलता है, मुस्लिम बोलता है, क्या बोलता है, वो लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए और इसको लिखना चाहिए। होम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखिए, होम सेक्रेटरी को, इमीडिएटली विद द प्रमाण प्रूफ दैट व्हाट हैपेंड, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द स्टेट। तो कमिटी बना के कमिटी की तरफ से एक लेटर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को लिखना पड़ेगा और होम मिनिस्टर को लिखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद ये लोग का क्या रिएक्शन होता है उसका हमारा टाइम एक फिक्स होना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे उसका इन द मीन टाइम सेंट्रल में हम देखेंगे। ऑलरेडी असेंबली एक्ट पास है, तो इसका मतलब हमको स्टेट त्रिपुरा लैंड मिलने में कोई समय नहीं लगेगा। वी हैव टू प्रोसेस, वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू प्रेस पेपर वर्क और कोऑर्डिनेशन का बात है। और जहाँ चीफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी है, जज है, कमिटीज है, उसका स्टेट बनाने का, इस बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का कमिटी है। उस कमिटी के तहत वी हैव टू टेक अप द इशू दैट ऑलरेडी इट हैज बीन पास, अभी पास हो चुका है। हम लोग यहाँ पूछता नहीं, पार्लियामेंट एक्ट नहीं कर रहा है। कोई बिल इमरजेंसी होगा फटाफट पास करता है, तो इसको क्यों पास नहीं करता है? ऑलरेडी इट हैज बीन रिकमेंडेड बाय द स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246 and article 368 is that big thing. Once it has been approved by the article 246, there is not very much more difficulty to take up with the article 368. ये हमको देखना पड़ेगा। और दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी जब हम देंगे उसको साथ साथ होम सेक्रेटरी के साथ बैठ के हमको प्रोसेस करना पड़ेगा, परोकार करना पड़ेगा। देन वी हैव टू टेल देम देखिए इतना है तो अकॉर्डिंगली आप इसका क्या है आप बताइए। नहीं तो कमिटी गठन करें, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, स्थानीय कमिटी बनाए, स्क्रीनिंग कमिटी बनाए, दैट इज इन देयर हैंड ओनली। तो इसलिए आप लोग को इससे खाली हम आएगा 23 अगस्त को आएंगे, हमारा 41 ईयर्स हो गया, मैटर ऑफ नॉट जॉब, ये कोई मजा का बात नहीं है। और जब आप लोग का 17 सीट था, ये लोग 13 सीट था, आज वो लोग 43 सीट हो गया, तब भी आप लोग चुप है। तो अभी कल तो आप लोग रिफौजी द गेट आउट, तो फिर भागना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे आप लोग? तो इसीलिए आप लोग को ये सब बैठने से नहीं होगा। यू शुड नॉट सिट लाइक दैट वे। और ईयरली साल आएगा हम धरना करेगा, उससे रिजल्ट नहीं होगा, डिजर्व नहीं होगा। वी हैव टू टेक अप द इशू with the Supreme Court of India, with the Constitutional Bench, and we have to take up the issue with the Home Minister, Home Secretary, Official Affairs Secretary. These 4 secretaries are the main backbone of the country. तो यही 4 से हम लोग इस तरीके से बात करना पड़ेगा। और बांग्लादेश में भी हम लोग को बात करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश को भी लिखना पड़ेगा कमेटी। ऐसे नॉर्मल कमेटी नहीं, वी हैव टू राइट टू द बांग्लादेश होम सेक्रेटरी, क्या है भाई, व्हाट इज योर मोटो, व्हाट इज योर व्यूज, व्हाट इज योर न्यूज, व्हाट यू आर डूइंग नाउ, व्हाट इज योर think what is your status about our bordering area and migrating entering from your land? We have to challenge. सीधा डायरेक्ट लगना पड़ेगा, तुम्हारा इतना आदमी इधर अंदर आ रहा है, बताओ तुम क्या जवाब है। तो इसीलिए और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़ना पड़ेगा कि ऑल डीसी जितना भी डीसी है उनको बोलना पड़ेगा कि भाई जांच करो, कहाँ से कब आया, कहाँ पैदा हुआ, कौन हॉस्पिटल में पैदा हुआ, कौन स्कूल में पढ़ा, अभी आया इसे एनआरसी लाओ, एनआरसी असम में आया, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ लेके आता है, जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं लाता है। इसका क्या मीनिंग है? वी हैव टू टॉक इन दैट मैनर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट अमित शाह जी से बात करेंगे और अमित शाह को चिट्ठी लिखेंगे। हम इसमें आई विल राइट लेटर फ्रॉम माई लेटर हेड, हम अपना से लिखेंगे और आप लोगों को भी कॉपी देंगे। इसका सीरियसली वी हैव टू टेक अप द इशू और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, नहीं तो हम यूएनओ में टेकअप करेगा। ये माइनॉरिटी हो रहा है। आई पर्सनली विजिटेड टू द त्रिपुरा एंड हम जब गया था, देखा बाप रे बाप, कहाँ से आ रहा है, इधर 1-1 मिनट में आ रहा है। वो जो बॉर्डर में जो आपका रानी का राजा का माहौल है कहीं उधर में देखा था एकदम 1-1 मिनट में घुस रहा है। हमारा कहाँ से आ रहे थे और नौका है, नौका से आ रहा है, तो वो कौन रोकेगा? हुई स्टॉप दैट। तो ये चीज़ को आप लोगों को बात करना पड़ेगा और कमेटी बना के आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आज
इश्यूज कितना है, और असम में भी है 60-40 काउंसिल चल रहा है, ये सब भी नहीं चलेगा। करप्शन जीरो लेवल में लाना पड़ेगा और टॉलरेंस होना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, जस्टिफिकेशन इज मैंडेटरी। करप्शन को तो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि करप्शन ही देश को खत्म करेगा। और एमंग द ट्राइबल, अभी ट्राइबल बोल नहीं पाते, सीधा साधा होता है, जंगल में होता है, उनके पास इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है, तो इसका फायदा उठाते हुए वो लोग ने ये काम कर रहा है। तो इसको रखना पड़ेगा पहले सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को, और उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी को, उसके बाद में हम लिखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, उसके बाद फिर आगे टेकअप करना पड़ेगा। और आप लोगों ने क्या पास आउट किया है वो 100 में आप लोग दिखाइए, आई विल टेक अप द इशू। उसके बाद वी हैव टू टेक अप द इशू। ऐसे बढ़ने से और हम धरना करने से तो काम नहीं चलेगा। जैसे स्टेट संदेश देना पड़ेगा, अमित शाह जी को जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सरकार चलाना है तो मानना पड़ेगा, उनके लिए जनता सब एक ही है। हाँ, वो पार्टी वाले से ठीक है, आपको स्टेट रोड नहीं, आपको ऑलरेडी पास आउट है, इजी पास आउट है एसएमसी, और हाई पावर कमेटी दिया हुआ है, 6 साल हो गया, कहाँ सो के बैठा हुआ है, कहाँ फेंक के बैठा हुआ है पेपर। इशन करना पड़ेगा ना, पेपर कूड़ा में डालने के लिए नहीं होता है, पेपर काम करने के लिए होता है। काम होने के बाद में 3 साल बाद इसको फेंका जाता है, पहले नहीं फेंकता है। तो इतना बोलते हुए मैं अभी टांगना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे। नहीं तो आप लोग बनाइए कमेटी, आई विल टेक अप द इशू। थैंक यू। मैं अभी त्रिपुरा लैंड जिंदाबाद, त्रिपुरा लैंड जिंदाबाद। और हमारा भाई बहन को सबको त्रिपुरा लैंड मिलनी चाहिए। फादी तिनी जत पार्टिसिपेंट्स रखनो बेलायक बेलायक लाई हापांगनि हामजाकमा चौपानी तिबाय माया फारो आसक जरा नरक sak soi tong mabagai haji ceng kabu tini panda payako ceng joto disiplin li atugui tong lainai tabuk tini bus kanggo tini Sara Tripura Party IPF tini Presiden Borom Genang Sar Prem Kumariang botini bus kanggo kok narik nai. Puilano jotono klummote hambai सभी को नमस्कार। आज 15 त्रिपुरा लैंड स्टेटहुड डिमांड सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन मंच में बैठे मेरी पार्टी की सारी लीडर्स और इनवाइट रिस्पेक्टेड विष्णु प्रसाद बराल जी और मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और दिल्ली में ये आवाज से सुने हुए भाइयों बहनों और त्रिपुरा में बैठे ये हमारी प्रोग्राम देखे मेरी भाइयों बहनों को सबों को समझने चाहिए। तो इसलिए मैं कुछ रिमिक्स लैंग्वेज से बात रखूंगा। तो स्पीच से पहले मैं एक स्लोगन देना चाहता हूं, तो आप लोग साथियों सभी खड़े हो जाइए प्लीज। सभी मिले आवाज करो, IPFP लॉन्ग लिव, IPFP लॉन्ग लिव। भारत सरकार हमारी आवाज सुनिए, भारत सरकार हमारी आवाज सुनिए। हमें चाहिए त्रिपुरा लैंड, हमें चाहिए सेपरेट स्टेट। भारत सरकार हमारी आवाज सुनिए, मोदी जी हमारी आवाज सुनिए, मोदी जी हमारी आवाज सुनिए, अमित शाह जी हमारी आवाज सुनिए, अमित शाह जी हमारी आवाज सुनिए। हमें चाहिए त्रिपुरा लैंड, हमें चाहिए सेपरेट स्टेट, हमें चाहिए त्रिपुरा लैंड, त्रिपुरा लैंड चाहिए, त्रिपुरा लैंड चाहिए। जान देंगे राज लेंगे त्रिपुरा लैंड चाहिए, जान देंगे राज लेंगे त्रिपुरा लैंड चाहिए।
हमें चाहिए त्रिपुरा लैंड, हमें चाहिए त्रिपुरा लैंड। भारत सरकार हमारी आवाज सुनिए, भारत सरकार हमारी आवाज सुनिए। हमें चाहिए त्रिपुरा लैंड, हमें चाहिए त्रिपुरा लैंड। IPFT long live, Youth IPFT long live, IWFT long live, IMWU long live, Atisa long live, Piprasa long live, Piprasa long live, IPFT long live, IPFT Tripura Lane Jotona Hambai তিনি পার্টি IPFT 200 শাখা তিনি ত্রিপুরা হাওয়া ত্রিপুরা সালি বীরমান তাই ত্রিপুরা সালি ফিনানি আন্দোলন ভারত সংবিধান সৈদাত তঙ্গই ভারত সংবিধান রুগৈ পিসফুल তিনি নাংমানি দাবি থানায় 2009 नि सिमित চেং थाइमाने তিনি 2024 नि 15তম স্টেটহুড ডিমান্ডে जों दिल्लीखौ पालाय दङ आबनि बिसिङो ताक्लाय 2024 18 तारिख अगस्त जों दिल्लीआव रावनारिहा बाय ट्रेन आबनि परेव जत निस्लाय 1993 मिजोराव त्रिपुरा हाव जत निस्लाय तिमा तिसा तितरय त्रिपुरानि त्रिपुरासा बा त्रिपुरानि त्रिपुरा जाति उपजाति जतन तैयकलुक बाक्सा ठिका बाक्सा हाकुवागै ठिका बाक्सा फसल गृहपालित पशु ताव मुसुक पुन जतन क्षयक्षति एंजाक क्रिया जत निस्लाय रेकर्ड सिबायगैनो ताकलाय 2024 तेवाइसा त्रिपुरा इतिहास बन्ना प्लावित हंहा आबनि बागै पार्टी IPFT पक्ष থেকে जों যত ত্রিপুরাবাসী জাতি উপজাতি সকল অংশের মানুষ বন্যায় প্লাবিত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত আয়ু বোনদেরকে ওনাদের পাশে দাঁড়িয়ে এই সমস্ত বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের জন্য সবাইকে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য পার্টি IPFTর পক্ষ থেকে আমার ত্রিপুরাবাসী সবাইকে অনুরোধ করছি আপনি বাগै যতনি থানিন কইমং নারগো যত আমাহাय বিরমান দাंनाय তাকুতি বুকুক যত ওয়ানসা ত্রিপুরাবাসী প্রায় 40 লক্ষ বরংনি যে বিরমান নাंजाग्रंनो जों जतन केबन ओक्लाग दुकनाय बिरमान नांजागनि ओक्लाग जों जत बाचालायनाय जत चुबा चुलायनाय सहयोगिता याक फ्लागलायनाय अब पार्टी IPFTनि पक्ष থেকে যতনি থানি কইমং তো যাই হোক তিনি চেন आं अबाबो सानानायो थानाय 2004 नि सिमित जों जे आंदोलन खायफाय माने जों तिने 15तम स्टेटहुड डिमांड आंदोलन खाय दङ हम लोग बीते 15 साल त्रिपुरा लैंड स्टेट डिमांड करके हम लोग आज भी दिल्ली में शामिल हो तो ये डिमांड ये मांग हम लोग को दी के गए थे ये हमारी स्वर्गीय सर NC देववर्मा जी आज वो हमारी बीच में नहीं है तो इसलिए आज का दिन हम सभी त्रिपुरा से आए भाइयों बहनों सभी मिलके सर NC देववर्मा उनका आत्मा सुख के लिए 1 मिनट हम लोग निरावता पालन करेंगे सभी खड़ा हो जाइए सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ जत न कोई मंग जोंनो तिनी आसे त्रिपुरासानि बिरमान भियौनानि बागै जे नांमानि बुथाय दिनै यागो कारख्लांखा जों आबनो तेयै तिनिबो अनर आंदोलन खायतंगो एवं माया सात आंदोलन जों खायथानाय अमाहाय जिनिस माय तांजागना तिनि जोंनो फुनगै बुद्ध टाइम 1 minute start
কুমার যতটা হামবাই যত জানি জানি জায়গা আছো কি জানাই जों টংথগৈ দিল্লি ফাইয়া আমরা টাকা পয়সা হাতে নিয়ে दिल्ली भ्रमणের জন্য আসেনি हम लोग जितने आदमी दिल्ली आए थे वो हम लोग दिल्ली तौर के लिए आया नहीं हम लोग 14 लाख त्रिपुरा का भविष्य सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली लैंड राइट सबको हमारे होना चाहिए तो इसलिए हम लोग अलग राज्य का डिमांड करना पड़ेगा तो ये डिमांड आज नया नहीं है आज 15 टाइम हो गया तो जब तक ना मिले तब तक हम लोग जो तननो छाओ इतिहास जो तो शिव इतिहास सबाई जाने इतिहास रचना करा যায় না ইতিহাস রচিত হয় ইতিহাস রচিত হয় রচিত ইতিহাসগুলো আমরা দেখতে পাই বিগত দিনের যে ইতিহাসগুলি যদি আমরা খুলে পড়ি তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে ত্রিপুরাসা আজকে স্বাধীন ভারতে যোগদান করেছি 1949 15 অক্টোবর আজকে প্রায় 70-73 বছর হয়ে গেছে তারপরেও এই ত্রিপুরা রাজ্যের যারা ভূমিপুত্র বা যখন মার্জার করেছেন তখন 82% জাতিগোষ্ঠী যারা ছিল ওনারা আজকে এই গণতন্ত্র রাষ্ট্রে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হয়ে ত্রিপুরায় বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে যার কারণে আমরা কারোর শত্রু নয় যাদেরকে ভারতীয় নাগরিক বানানো হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয় যারা সরকার মেনে নিয়েছে আমরা সবাই ভারতীয় কিন্তু আমরা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার স্বার্থে আজকের দিনে আমরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং 1/3 মেজরিটি নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়েছে উন্নয়নের দিকে আমরা পিছিয়ে পড়েছে যার জন্য 1984 সালে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যেটি ট্রাইবেল এরিয়াদেরকে আলাদা নতুন একটি রাজ্য গঠন করে দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে আমরা আবেদন আর্জি এবং আমরা আন্দোলনে নেমে আজকে সবার সামনে সমাবেত হতে হয়েছে তো কাজেই আবনি ভাগে চুন্ন কেহাবা হামিয়া তার চিত কোনো জাতির বিরুদ্ধে कोई जाति का खिलाफ नहीं कोई धर्म का खिलाफ नहीं जितना पॉपुलेशन अभी त्रिपुरा में है सभी ने इंडिया गवर्नमेंट ने मान लिया कि वो इंडिया सिटीजन है तो हम लोग भी मान लिया हम लोग सब इंडियन सिटीजन है लेकिन जिस दिन भारत के साथ जुड़े हुए थे हम लोग उस समय हम लोग 82% था लेकिन आज 70-75 साल के भीतर अंदर में हम लोग 31% होके सेकेंड क्लास सिटीजन बन के रहना पड़ा गलती किसका है गलती हमरा का नहीं गलती हम लोग का नहीं गलती सरकार का है तो सरकार हम लोग को हमारे जनजातियों को शेप करना अभी भारत सरकार का काम है अगर भारत सरकार देश को रक्षा के लिए सरकार बना है देश में बहुत सारी जाति उपजाति हर स्टेट में सेकेंड क्लास सिटीजन बन के रह रहा है सभी को समान मर्यादा समान अधिकार वो देना सरकार का कर्तव्य है सभी को दिया है उत्तर प्रदेश को अलग करके छत्तीसगढ़ दिया उत्तराखंड दिया है मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ दिया है बिहार को झारखंड दिया है हाँ आंध्र को तेलंगाना दिया है
और त्रिपुरा को भी त्रिपुरा लैंड दे दो, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या बुराई है। आसाम को भी बहुत सारी मांग है, गोरखालैंड, बोरोलैंड, दिमा हासाओ कार्बी, बहुत सारे अपना स्टेट डिमांड करता है। और यूपी में बुंदेलखंड, महाराष्ट्र में विदर्भ, सभी कोई छोटा हो न बड़ा, सभी अपना अधिकार के लिए लड़ाई कर रहा है। तो सभी को समान अधिकार देना से सरकार का क्या दिक्कत है। अगर जैसे अमेरिका जैसे विश्व का 1 नंबर देश, वहां में सभी को समान अधिकार दिया सकता है, सभी को अच्छी आइन कानून व्यवस्था लेके जीने के लिए अधिकार दिया जाता है, तो हमारी देश विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है। तो उस हमारे देश में भी सभी को अपना अपने अधिकार दे के सभी को मर्यादा देना सरकार का कर्तव्य है। तो आबोनी बाइये जोंनोस पर नायसिनाय, जोंनोस पर रक्षा खेनाय भारत सरकार। फिर भी जो 75 साल 76 साल 78 साल जो भारत सरकार महापसाया हमें जिन्हें आंदोलन तेब तेजी मांगनाय, जिन्हें आंदोलन तेब होंगनाय त्रिपुराय भन्नाय कबालिते आज के विगत लगातार 10-12 दिन धरे बृष्टि হয়েছে। 10-12 दिन बारिश के कारण त्रिपुरा में बहुत बुरी हालत में है। फिर भी आज हम लोग दिल्ली में जैसे जंतर मंतर में धरना पर बैठा है, इसी तरह हमारी पार्टी की तरफ से 32 डिवीजन कमेटी है, विभागीय कमेटी है, सभी विभागीय कमेटी में आज का दिन स्टेटहुड डिमांड है। सभी तरफ से ईश्वर को विश्वास करके, भारत सरकार को विश्वास रख के, संविधान पर विश्वास करके सभी डिवीजन कमेटी में आंदोलन और सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। ऐसी स्थिति में भी हम लोग बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये और भी ज्यादा हम लोग के लिए, त्रिपुरा के लिए खतरा बन सकता है। अगर हम लोग आवाज नहीं उठेगा तो बहुत बड़ा खतरा और भी हो सकता है। आबोनी बाइये ताकुराव माया हानि जोराव आंदोलन किए थाने निभाओ त्रिपुरा वो तौनाय जो तो तारी ताकुते बुखो ताई मा फानी समान आइने हानाव फायो जो तरन दिल्ली जंतर मंतर नि धरना वो तो कोई बासा गई मासा गो तिनी चंग नांगमणि काउनो सानानी बागै नांगमणि बुथाइनो चंग कारिनानी बागै एवं भारत संविधान में विश्वास नारुगै এই গণতন্ত্র হাব গণতান্ত্রিক লামানি বিসিংতে যিনি মান থাইসু থাইনা थिख्लाय टिबिनानि बागै যিনি त्रिपुरा हाव गोबां राजनैतिक दल खायैन যিনি अ आन्दोलन खायलाय दङ फियाबा जों माइनरिटी जाति गोष्ठी जोंनो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खायै रां पैसानि लबि ताई निनि क्षमता पावारनि लबि अमाहाय फुनोगै मान थाइसु थानि काव साना थां थानिवा बुखु मुथागै रिजागो या प्रिसेना थांथिङो या गं खावै रिजागो मोखां फुरौना थांथिङो मोखां थुग्लौै रिजागो अमाहाय दंमों अमाहाय जामों अमाहाय खायजामोंनो बै केबल सागै बुजाव फाइग्लाग साग सागनो जों आबोनो बिचिवै साग सागनो आबोनि हइते साबधान आबोनो हइते जों करा वानसक मुंबाय के तंगैनो अचिनि नांमानि बुथाइनो जों कारै माखलांनाय फियाबा जों कारै क्लांमाय फनो जदि अंसि हांकेबा जोंनि बुसा बुतै ते जेनारेशन टू जेनारेशन फनो जों अमाहाय आंदोलन खायमा थानाय कारण जों এই রাজ্য जों এই देश 184 जन राजवंश তিনি भारतवर्षनि आइन बाय सेकेंड क्लास सिटीजन नंगे तंतै तंतै दिन सासा जों थार्ड क्लास सिटीजन को गयनो खायजाय आंगै पाइनाय अ दिन फायासनि स्टांगनो जों जत ताकुक बुखुक ते त्रिपुरानि जत त्रिपुरा सा 14 लक्ष तंनायाव जों थांसा बाक्सा एवं खरां बाक्सा के चिरिगै जिनि अ मानथाय जुथेरनो जों तिख्लाय मातु बुनाय ताकुक ते बुखुक सं। तो यही मेरी आवेदन है मेरे त्रिपुरा में बैठे भाइयों बहनों, मेरा अपनी त्रिपुरा सा को यही बोलना चाहता हूं, अगर हम लोग त्रिपुरा में 184 राजा ने डोमिनेट करके आया है और आज डेमोक्रेसी कंट्री में मिला के हम लोग को सेकेंड क्लास सिटीजन बन के रहना पड़ा, तो आज
2024 में सेकेंड क्लास, 2030 में हम लोग थर्ड क्लास भी नहीं रक्षा नहीं होगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? अभी जाने के लिए तो जगह नहीं। बांग्लादेश से कहीं कहीं क्या हो रहा है, कहीं पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, और नेपाल में भी ऐसा है, कोई अफगानिस्तान में भी ऐसा है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? यही धरती पर रहना पड़ता है, यही पर रहना पड़ेगा। भारत माँ को विश्वास करके रहना पड़ेगा। भारत क्योंकि हमारी माँ है, भारत हमारी देश है, भारत हमारी सब कुछ है। भारत में रह के अपना अधिकार को लेना पड़ेगा। अपना अधिकार को किसी और को दे के हम अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मेरी माँ को विश्वास करके ऐसी माँ की गोद में बैठना जरूरी है। तो इसलिए मेरी भाइयों बहनों को मेरी यही मैसेज भेजना चाहता हूँ, जो भी हो त्रिपुरा में बैठे देखे हुए सुने हुए मेरी भाइयों बहनों और आज इस मंच में बैठे सभी लीडर और मेरे साथी संग्रामी भाइयों बहन को यही मैसेज, अगर जब तक ना मिले तो एक साथ रह के अपना दिमाग को हासिल करना पड़ेगा। जब तक हासिल ना हुए तो हम लोग एक साथ रहना पड़ेगा। जो तो अपनो कौशल नहीं ताकुर्ती गुकुर्सल हांगरो जो तो वाला नहीं कोई परिवेश कोई सिचुएशन इधर उधर लेके अपना दिमाग को लेके कोई सिचुएशन ऐसी भयानक खड़ा करने में नहीं चाहता। मैं शांति और संप्रीति के साथ भाई बहन को साथ अपना जो मिलना था, अपना जो सर्वाइव था होना चाहिए, कैसे होगा, कैसा होना है, कानून की तरह कैसा करना है और संग्राम कैसा करना है, दिमाग कैसे रखना है, यही यहाँ पर आलोचित किया है। मेरा विष्णु प्रसाद जी कॉन्स्टिट्यूशनल लेके बहुत सारी समझा दिया हम लोग को। और मेरा कोई असम से है, वो मेरा कंट्रापुरी से जो लीडर स्टूडेंट का लीडर साहब, उन्होंने भी समझा दिया और बाकी लीडर ने भी सब कुछ हम लोग को बोला है हम लोग कैसे क्या करना है। तो हम लोग कानून की माध्यम से अपना जो मिलना था वो हासिल करना पड़ेगा। हम ये ताकुराव जों जतन सिनी नांगनाय, जतन बुखाव नारिंगनि नांगनाय, लेक्सा रिया सामुंगबो जों संना नांगनाय, तो विश्वास दंना नांगनाय, एके अपर के विश्वास रेखे सबाइके सामने निये, सबाइके संगे निये, सबाइके विश्वास रेखे एके अपर के साहाय्य हाथ बाड़िए निजेर आंदोलन सफल करते होबे। निजेर आंदोलन करते गिए अन्य केउ सहयोगिता नाও करते पारे और যারা করবে তারা তো हमेशा करते रहेगा और যারা করবে না কেউ নাও করতে পারে। তো যাই হোক আমরা আমাদের আন্দোলন জারি রাখতে হবে আর যতক্ষণ না পাওয়া পর্যন্ত ততক্ষণ আমরা সবাই সমবেত হয়ে একটি আন্দোলনে সামিল হয়ে আমাদের পাওনা আমরা বের করে নিতে হবে। সেটাই আমাদের মূল কাজ এবং এটাই আমাদের মূল মন্ত্র। আমরা তাকুরাও जोंनो गोबां इतिहास नगो कई कभी राजनीति फायदे के लिए अपना दिमाग को लेकर कोई पॉलिटिकल लीडर भेजने के लिए हमको बुलाता है और बैठा कुछ बातचीत पॉइंट को लेकर बातचीत किया। अगर हम पावर में आएगा तो ये आप लोग को बना देगा, हम पावर में आएगा तो ये कर देगा आप लोग को। लेकिन हम पूरा ऐसा खुल के नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा स्थिति हमने बहुत बार मिला, बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। अगर अपना पावर मिलने की बात, अपना क्षमता हासिल करने की बात, उनसे मिलने के लिए 1 महीना 2 महीना अपॉइंटमेंट मिलने के लिए 2 महीना 3 महीना इंतजार करना पड़ा। उसके बाद भी अपना मन मुर्जी अपॉइंटमेंट नहीं देता तो हम लोग ऐसे ही बैठना पड़ा। तो चुनाव आएगा जाएगा, मंत्री बनेगा 5 साल वो चला जाएगा, MP बनेगा 5 साल पर वो अगर ना जीते तो अगर टिकट ना मिले तो 5 साल की बाद वो भी हम जैसे आम इंसान बन जाएगा। लेकिन जब बनने के लिए तो सभी कोशिश करता है, तो बनने के लिए सभी सब कुछ बोलता है और मिलने की बात कुछ भी नहीं देता। हम लोग को देखिए हाई पावर मोबिलिटी कब बनाया 2018 और त्रिपुरा असेंबली में 2018 में मैं भी MLA चुनाव में जीता, मैं भी MLA था। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोविजन आया, अगर अतरमल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको अपग्रेड कर सकता है। तो चर्चा हुए विधानसभा में, तो सभी सर्वसम्मति क्रम वो बिल को सपोर्ट किया।
बिल पास हुआ, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बना के त्रिपुरा असेंबली से पार्लियामेंट टेबल में अभी है 19 में, आज 2024 हो गया। स्टेट गवर्नमेंट ने माना, असेंबली में पास किया, लेकिन ऑलरेडी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बना के दिल्ली पार्लियामेंट में अभी फाइल आया कब से, लेकिन वो फाइल अभी भी खुला नहीं। तो त्रिपुरा में हम लोग सरकार में है, बीजेपी आईपीएफटी सरकार में है, सरकार सभी मिलके ऑपोजिशन को लेके चर्चा किया, चर्चा की बाद वो बिल पास किया, ऑलरेडी पार्लियामेंट टेबल में ले, तो उसको खुल के देने, उसको कार्रवाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का दिक्कत क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का दिक्कत क्या है, लेकिन देता नहीं, क्योंकि हम लोग त्रिपुरा में सेकंड क्लास सिटीजन, इंडिया में हम लोग सेकंड क्लास सिटीजन है, हम लोग का पास ज्यादा वोटर्स नहीं है, कुल मिला के 14 लाख है, तो हम लोग का पास ज्यादा वोटर नहीं है, तो दिल्ली में बैठे कोई लीडर वोटर का जरूरी हो भी सकता है, ये मेरा ख्याल है, तो ऐसा लगता है, तो इसलिए हम लोग का काम नहीं किया। आमनी भाई ना आवाज मती सुनाई, आवाज उठाना पड़ेगा, जो होना था वो हो गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। अगर आवाज नहीं उठेगा तो नहीं करेगा। आम भैया जों जत सिलिना नहीं खाओ तो मैया जे ब्रुनो सम्मान दिए, सम्मान नहीं कोनो मर्यादा करे, आप ब्रुनो सम्मान दिए लाभ करे, जिसको हम सम्मान देता हूं, लेकिन सम्मान की कोई इनाम का कोई भी नहीं मिलता, तो सम्मान दे के हम क्या करें? जे ब्रुनो सम्मान नहीं, जाके हमें सम्मान देव, सम्माনের বিনিময়ে যদি কোনো কিছু না পাই, তাহলে আমি সম্মান দিয়ে আমার কি লাভ হবে? আমায়া মনসাইসাই সাও जों जतन मासि नाय, जों माइया के माइया आंदोलन के थानाय, माइ के माइनाय आंदोलन के थानाय, माइबु माइया माइनाय रिबु रिया रिनाय कय दिन ले जों बाके तंनायबा आमय जों आबो केबो शत्रुनि कौया आबो आलादा कोनो आइनिया अब आइन अलरेडी बानाई पाई, अलरेडी आइन अब स्ट्राक्चर स्टाम्प है, माने आइन स्ट्राक्चर स्टाम्प है, अब ना कार्यकरी खेनी उनको आसुक से साकलाई मुं आरो जागा टेलीफोन तो साकले या कोंके जोंले ताइ देखे तो स्नेबा आबनि बाये ताखुराव जत जों थाहा बाहा तंदे बेंनि जुगलियो लिजेनो आरो ताकलाई दे बें गेम थनाय जोंनो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेनाय भारत जखन आजादी की फाइट थी, इंडिया आजादी का फाइट जब किया था, उस समय इंग्लिश 3 लाख समथिंग था, 19 करोड़ पॉपुलेशन था, उसमें से 3 लाख इंग्लिश लोग, बाकी सभी इंडियन। किसी को मुस्लिम तुम अपना फाइट करो, किसी को सिख तुम अपना फाइट करो, किसी हिंदू तुम अपना फाइट करो, ऐसा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगा के इंडियन सभी को एक होके आने के लिए 200 साल लगा, और जब एक हुआ सब समझ में आया, सब समझने लगा कि अंग्रेजों की डिवाइड एंड पॉलिसी में हम लोग फंस गया, हम लोग अभी और नहीं फंसेंगे, हम सब एक होंगे, देश को आजाद करेंगे। जब फाइट किया था, किनारा दिया, तो इंडिया आजाद हो गया। तो हम लोग को भी अभी ऐसा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया है, कोई त्रिपुरा में था बना दिया, कोई आईपीएफटी बना दिया, कोई त्रिपुरा में था एस, आईपीएफटी बी, आईपीएफटी सी, कोई को गौरव मुक्ति परिषद, कोई को एसटी मोर्चा, कोई को जनजाति मोर्चा, ऐसा बना के अपना यूनिटी को तोड़ दिया। किसने दिया? पॉलिटिक राजनीति। इसलिए हम लोग को कमजोर समझ रहा है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बना के हम लोग को जो मिलना था, जो संविधान में था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में था, उसको लागू करके देना था, लेकिन हम लोग एक साथ होके हम लोग हमारी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना है, लेकिन दिल्ली तक पहुंचाने के लिए हर मुसीबत हम लोग को सामना करना पड़ा। तो पॉलिटिकल के कारण से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके हम लोग को एक किसी का पीछे किसी को लगा दिया, मेरा पीछे कोई और को लगा दिया, कोई और का पीछे किसी और को लगा दिया, ऐसा करके हम लोग को यूनिटी को तोड़ दिया। तो अपनी भाई वो मैसेज ना तुम जाओ तो सिली ना
जत जों सजाग तुंनि नांनाय स्ट्रेट तुंनि नांनाय तै जोंनि आन्दोलन जों गाहाम खेबथुबिना नांनाय आबुनि बागै आं ट्रेकाव गोबां साया जोंनि टाइमफोरा आस्ते आस्ते पाइनि दिगे थांतोहा ओमफ्राय जों रेलि साखेनाय रेलि खेपायो मानसनि प्रग्राम जखन पाइनाय एरपरे जोंनि कासे रेलि तंनाय रेलिनि परेयाव जों स्टैंडिंग रैली होते वक्त रैली में हम लोग इंटरव्यू देंगे हाँ अब हम भाई आंट्रे कौन बंग सारी नहीं है हम ये जो तो लीडर्स जो तो फैले संग्रामी ताकुम को क्या अब चंगसों हाथ तो पेपर इधानो ऋषिक आंखो सामने है आंख साइड जब तक ताकुती बुको और मीडिया भाई वो बहनों हम लोग हमारी मेमोरेंडम सबमिट करके आया है ये है रिसीप्ट 23 अगस्त 2024 अब वो चीनी मेमोरेंडम सबमिट है रिसीप्ट कॉपी चीनी नांगमानी नचंग मार्टी खाइनाय एवं होम मिनिस्टर बाय प्राइम मिनिस्टर पके होम मिनिस्टर ताई कैसांहा अब प्राइम मिनिस्टर যত জায়গানো চিং রিফাইহা আমনি বাজে তাকুরাও চিনি যে নাংমো जों आबो सब समय न बसी बसी रिमाइंडर माखाइनाय जे माइ आसानो जों अबहाय सामं खाइ माथांनाय आमबागै चिनि जीएस ताइ चिनि ट्रेजारार अमित ब्रकनै ताबुगो थांगै पाइनानि पाया पार्लियामेंटनि सेक्रेटारि अफिसो थांगै होम मिनिस्टर बाय ताइ प्राइम मिनिस्टर अफिसो बराव बाय मालागै रिसिबन ब्राव साबित फाइथाइका आबुनि बागै बेले बेले हामबाय ताइ तिनिनि काउरां ताइ लाउरिसिया ताइ वाइसा आं जत न काबगनाय जत बासादि फ्लेट दिसादि पाइथांनि माने स्टेजनि प्रग्रामनि पाइथांनि स्लोगान आं रुनाय आनि लगे लगे जत हिंलायदे तो लास्ट स्लोगान रैली इनका अलका IPFT long live IPFT long live Tripura Lane long live Tripura Lane long live भारत सरकार हमारी आवाज सुनिए भारत सरकार हमारी आवाज सुनिए हमें चाहिए त्रिपुरा लैंड हमें चाहिए सेपरेट स्टेट मोदी जी हमारी आवाज सुनिए मोदी जी हमारी आवाज सुनिए हमें चाहिए सेपरेट स्टेट इंडिया गवर्नमेंट हमें चाहिए सेपरेट स्टेट भारत सरकार हमें चाहिए त्रिपुरा लैंड भारत सरकार हमारी आवाज सुनिए अमित शाह जी हमारी आवाज सुनिए अमित शाह जी हमारी आवाज सुनिए हमें चाहिए त्रिपुरा लैंड हमें चाहिए त्रिपुरा लैंड नो त्रिपुरा लैंड नो रेस नो त्रिपुरा लैंड नो रेस जान देंगे राज लेंगे नया राज्य चाहिए जान देंगे राज लेंगे नया राज्य चाहिए जान देंगे राज लेंगे सेपरेट स्टेट चाहिए त्रिपुरा लैंड चाहिए त्रिपुरा लैंड चाहिए नया राज्य चाहिए भारत सरकार हमारी आवाज सुनिए मोदी जी हमारी आवाज सुनिए अमित शाह जी हमारी आवाज सुनिए IPFT long live IWFT long live UIPFT long live Atisa long live IMW long live IPFT Jotana Hambai, Sabiko Namaskar. Asin sana, tini jora sabsawa ani kau pinta tani samane, ani kau arano pairika. Tei, tini orang stage ni program. Bacu ke kau saleh mani program bo, arano muthaka, tabuk sing program pai mani, kaisa rally misil khai lai round muni lai dai. Jotana Hambai.
विप्लव पीछे मेमोरेंडम रमान जे मेमोरेंडम रननानै रुफायलायगा मेमोरेंडम न सट माननो ना फायगा होम डिपार्टमेंट नि होते एमएसए नि होते चिनि आरो फायो चिनि प्रोग्राम एमएसए नि होते प्रोग्राम फायगे चुना साका नन मेमोरेंडम बागै राव चुंगलगिरि ना फायो नन मेमोरेंडम ऑफिस होते न तुबिरि फायबाय आबन हम हायके साका एमनि परे का ताम साका मेमोरेंडम जमारि मानि परे ताम साला मेमोरेंडम जमारि मानि परे वता दिनै हयतो दिल्लीआव दिनै जे प्रोग्राम पाइनाय ताइ खाना सलै जों तंनाय एबनि परे मेमोरेंडम नि बेस खायै जों दाबो होम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार आउट ऑफ जोंनि कंट्री एबो होम मिनिस्टार जों जरा नायतंगो जोंना किसा मालायनानै बादे अपॉइंटमेंट जानानै दिनै जों सुदु बिनि अफिसाव जों मेमोरेंडम रुलायखा दाबो मेमोरेंडम बिनि आरो सफैनाय एबो जों बन थानाय अपॉइंटमेंट नि बागैबो जों अपॉइंटमेंट नि बागै आगे रिया को पूर्व पाकिस्तानी बांग्लादेशी त्रिपुरा में रिफ्यूजी बंद करो बांग्लादेशी रिफ्यूजी बंद करो त्रिपुरा जनजाति जीने के लिए त्रिपुरा लैंड चाहिए त्रिपुरा जनजाति जीने के लिए त्रिपुरा लैंड चाहिए पूर्व पाकिस्तानी त्रिपुरा में रिफ्यूजी बंद करो बांग्लादेशी रिफ्यूजी त्रिपुरा में बंद करो
और रैली नहीं नंगे जेहेतु कौन में ना और रैली बुसु दरते दाखल दरते बुसु आगु खा जोंनि जे दिल्ली जंतर मंतर नि दरना बुसु दरते आगु जा बेमरे नम्र साबिदा खाना खाता दाउ वातिरो वति सामसे नमा बायदि केबं मुंदा फाइका दाउसो जरत तो कोनो केबं मुंफाया वातै किजिसा फाइका जों सुस्थु नि बिसिङै नि टिमि प्रग्राम मोटामोटी पाइनाय दिगेन थाङै दङ इंडिया गभर्नमेन्ट नि जों Hajungo Home Minister Office, the Prime Minister Office, ini Bronganang IPF ini General Secretary by Secretary Treasurer Sar Omid Deborma Borok Borong Mithanginai India Government Prime Minister the Home Minister Office through a memorandum submit by Kabita. They all memorandum submit by positive no sini pakai. Our demand fulfill.